Okay, children, now we will start our second chapter, that is classification of law. So, in the classification, law is important for the correct and comprehensive understanding of law. क्यों किया गया है law को classified? To understand law more clearly. First of all, we see the benefit of classifying of law. क्यों important था? What are the various reasons to make the classification in law system? फर्स्टली टू अंडरस्टैंड ईजली रूल्स और रेगुलेशन को आप अच्छे से समझ पाएँ. सेकेंडली सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल्स, कैसे सेक्शन वाइज सेक्शन में आर्टिकल्स वाइज आर्टिकल्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे किस चीज़ के लिए कौन सा कोड बना है, इसके बारे में आपको क्लियरली समझ में आए. थर्डली प्रोफेशनली ओनली यूजफुल फॉर द स्टूडेंट ऑफ लॉ. प्रोफेशनली भी जो स्टूडेंट है जैसे आप हैं, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ ये लॉ लोकल लॉ है तो म्यूनसिपल लॉ में जाएगा, ये टाइप का लॉ रूल्स और रेगुलेशन इंटरनेशनल लॉ है तो इंटरनेशनल लॉ में जाएगा, स्टेट्स का मैटर है तो इंटरनेशनल लॉ में जाएगा. तो दीज आर द थ्री बेनिफिट्स व्हाई द क्लासिफाइड लॉ इज क्लासिफाइड. दिस इज योर 2 marks क्वेश्चन ऑल्सो, that is why the law, what are the various benefits to classify the law. तो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द लॉ और रूल्स और रेगुलेशंस, सेकेंडली टू सिस्टमेटिक अरेंजमेंट आपको समझ में आएगा उसका, थर्डली इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट ऑफ लॉ. सो देयर आर सेवरल वे ऑफ क्लासीफाइंग द लॉ. एक ही वे नहीं है जैसे कि इस बुक में बताया गया है 2 different types of classification, but there are different types of classification. Even in ancient civilization, the jurists were well aware of difference between civil and criminal law. Means क्लासीफाई क्यों किया गया है कि आपको डिफ्रेंशिएट पता चले कि कौन सा सब्जेक्ट मैटर सिविल है और कौन सा सब्जेक्ट मैटर क्रिमिनल है. Like, however, with the passage of time, many new branches have came in existence, and therefore old classification has become outdated. Means पहले सिविल लॉ अलग होता था, क्रिमिनल लॉ में डिस्ट्रीब्यूट किया, वैसे आज भी है ये चीज़, लेकिन आज की डेट में जो भी क्लासिफिकेशन हुआ है और जो पुराना क्लासिफिकेशन था उसको आप क्या कर दिए, आउटडेटेड हो गया है. Now the law will be classified only in 2 classes. First one is international law and second one is municipal law. Under the international law, I already told you in the previous video, 2 differentiation is there in international law, private law and public law. In the municipal law also, private law and public law. We will study it out. Okay. Now this classification, first we have to take the topic international law. Okay, in the international law is important branch of law. It deals with those rules and regulation nations which recognize are binding upon each other through reciprocity. Many jurists, however, do not give much importance to this branch. In recent time, this branch of law grown many folds and have acquired increasing importance of globalization. Okay. इंटरनेशनल लॉ एक ब्रांच है लॉ का जो कि स्टेट टू स्टेट और नेशन टू नेशन को बाउंड करता है कि आपको लॉ सिस्टम को फॉलो अप करना है. अगर दोनों स्टेट का लॉ सिस्टम डिफरेंट है तो वो उस टाइप में, इसलिए पहले इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज की डेट में स्टेट से स्टेट में वॉर होती हैं, रूल्स और रेगुलेशन हर स्टेट्स के अलग होते हैं. सो the needs of international law is increasing its importance by the globalization. आपको पता है कि लोग इधर से उधर जा रहे हैं, लोग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके जो क्राइम सिस्टम है वो इंक्रीज़ हो रहा है. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ऑल्सो इंक्रीजेस. नाउ द इंटरनेशनल लॉ इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 parts, that is public law and the private law. Okay, now in the public law relates to the body and rules or regulation which governs the relationship between nation. This is very important. जो nation to nation public relationship जो countries के point bodies rules और regulation पे follow up करते हैं, that is public international law. Countries mutually recognizes this set of rules and binding on them in their transaction of reciprocal. means आज मैं फॉरेन जा रही हूँ या फॉरेन में इंडिया का बंदा आ रहा है या इंडियन में फॉरेन जा रहा है, तो उनको वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने हैं और हमको यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने हैं. ये अपनी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है कि इफ़ यू आर लिविंग देयर तो यू हैव टू फॉलो देयर रूल्स और रेगुलेशन. इफ़ यू आर लिविंग हेयर सो यू हैव टू फॉलो हेयर्स रूल्स और रेगुलेशन. दिस विल बी रेसिप्रोकल प्रोसेस.
ठीक है। नया प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ मीन्स अगर कंट्री टू कंट्री का मैटर है तो दैट विल गोज इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, whereas private international is part of the state which deals the cases having foreign elements. Private international law deals with the rights of private citizens of different countries. अगर किसी private citizens का countries का abolition हो रहा है, like सिटीजनशिप आपने फॉरेन के लिए और फॉरेन में ही आपके साथ कुछ क्राइम हो रहा है और आप आ रहे हो इंडिया आ रहे हो, लाइक आपका मैरिज अडॉप्शन फॉरेन NRI से शादी हो गई, उसमें आपका फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है प्राइवेटली, जिसमें कंट्री हर्ट नहीं हो रही, अदर पर्सन हर्ट नहीं हो रहा है, पर्सनल मैटर है, तो दैट टाइप ऑफ मैटर विल गोज इन द डोमेन ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. नाउ क्लियर. पब्लिक जहाँ पे कंट्रीज अदर पर्सन भी इफेक्ट हो रहे हैं तो दैट टाइप ऑफ क्राइम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एंड इफ द प्राइवेट पार्टीज विल बी held responsible then that type of law will be goes in the private international law.